Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our last lecture, and this is lecture number 16. In this lecture, we will talk about lubrications, type of lubrication, physical characteristics of oil and gas, the oil and greases, and the additive that are used in lubrication and engine lubricants. Let's start with lubrication. Now, lubrication is generally defined as the process or technique of using a lubricant to reduce friction and wear and tear in a contact between two surfaces. And the study about lubrication, the field that describes these lubrication techniques is known as tribology. So basically, the function of lubrication is uh, to reduce the friction. That is the only one of the function of the lubricants. There are many other functions of lubricant that is described below, but the basic function of lubrication is to reduce the friction between two surfaces. It must also remove heat, often in large amount. As you have seen that in engines, you have mobile oil, and that is generally used to reduce the friction between the moving parts as well as to remove the heat that is in large in amount. It is also used to protect bearing from damage and preserve the working accuracy and alignment of structures. Uh, by means of preserving the working accuracy and alignment of structures means that during functions of moving parts there may be wear and tear, and due to this wear and tear uh, they may misalign. So in order to protect your system, plant or engine or any system to work properly, the lubrication is needed so that be it may preserve the working accuracy and alignment of the structure. It must also protect bearing, gears and other parts against corrosion, and it must be non-corrosive. ये जो है ये आपके बेरिंग्स गेयर जितने भी और इन कंटेक्ट पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट भी करता है और उसको corrosion से भी बचाता है. And this lubricant must be non-corrosive. Sometimes it may be required to seal shaft and bearings against moisture and ingress or entrance of contaminant particles. It is also used to seal shaft and bearings against moisture. So it generally protect them from moisture, so they may not corrode. And also in grass, it also prevent entrance of contaminating particles to your plant or system. Now, there are a few type of lubrications which are shown to you. First one is boundary lubrication. The second one is elasto hydrodynamic lubrication, and third one is full full fluid film lubrication or hydrodynamic. We will discuss each in detail. The first one is boundary lubrication. Um, it is perhaps best defined as lubrication of surface by fluid film so thin that friction coefficient is affected by both type of lubricants and nature of surfaces and is largely independent of viscosity. Because the fluid film is so thin that is between the surfaces. That's why this type of lubrication is independent of viscosity. A fluid lubricant introduced between two surfaces may spread to microscopically thin film that reduce the sliding friction between the surface. In you may notice that in you will notice that in next slide that this boundary lubrication is spread it so microscopically that it form a thin film and that reduce the sliding friction between the moving part or surfaces. The peak of high spots may touch but interlock occur only to limited extended and frictional resistance will be relatively low. I think we should move to the next slide. Here you can see that this is the boundary lubrication. You may see that there are certain peaks when and these peaks may
interlock due to non-availability of lubrication. But due to boundary lubrications, as this lubrication thin film will fill these up and downs on in the surface, and hence a thin layer will be formed, and that will reduce the friction between these two surface cross. Actually, this is your, let's say we can say a bearing, and this is a shaft. So the weight is acting upon the shaft, and the shaft is also rotating. So in this in this para, or in this sentence, it is saying that peak of high spots may touch, but interlocking occur only to a limited extent, and fractional resistance will be relatively low. A variety of chemical additive can be incorporated in lubricating oil to improve their property under boundary lubrication condition. So we add some additives in order to enhance the chemical property of lubrications. Some of these additives react with the surface to produce an extremely thin layer of solid lubricant, which help to separate the surface and prevent seizures. Other improvement improve the resistance of oil film to effect of प्रेशर. तो एडिटिव हम आगे पढ़ेंगे भी कि हम अपने लुब्रिकेंट्स में जो है वो एडिटिव इंक्लूड करते हैं. उन एडिटिव्स का भी अपना एक फ़ायदा है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. बट ये एडिटिव इस बाउंड्री लुब्रिकेशन में जो लुब्रिकेशन होती है उसमें जो एडिटिव डाले जाते हैं उनका मेन मकसद ये है कि वो एक थिन लेयर बिटवीन द सॉलिड सर्फेसिस जो है वो प्रोड्यूस करे, ताकि वो सर्फेसिस एक दूसरे से सेपरेट हो, और ये ना हो कि कहीं वो जो है वो सीज हो जाएंगे अगर उसमें वो लेयर ना बने, लुब्रिकेशन लेयर ना बने थिन, तो मे भी वो सीज भी हो सकता है. ठीक है ना. तो इसलिए बाउंड्री लुब्रिकेशन का फ़ायदा ये है कि वो थिन लेयर बनाए और सीजर ना हो. दूसरा मकसद ये भी है कि जो है वो ऑयल की रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करे टू द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि जब चाहे जाहिर है जब प्रेशर या वेट जो है वो एक्ट होता है, ठीक है ना, तो वो ऑयल को डिस्पर्स करने की कोशिश भी करता है. सो दैट इसलिए हम एडिटिव इंक्रीज करते हैं कि वो ऑयल का जो है वो ऑयल उस प्रेशर को कुछ ना कुछ हद तक वो रेजिस्ट करे. आप आगे इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे भी, आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह जो है वो प्रेशर इफेक्ट करता है. This is example of the three types of lubricants. We have discussed the boundary lubrication. Again, we will move to the mixed lubrication, and then we will study the dynamic lubrication. You can see we will again switch over to this slide after discussing the types. Elastrohydrodynamic lubrication. It occurs between rolling contacts. ये रोलिंग कंटेक्ट्स के दरमियान ये इलास्टोहाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन की जाती है, एंड इज़ अ मोड ऑफ फुल फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन इन विच हाइड्रोडायनामिक एक्शन इज सिग्निफिकेंटली इनहेंस्ड बाय सरफेस इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड लुब्रिकेंट वेलोसिटी इंक्रीज ड्यू टू हाई प्रेशर. तो इसमें हाई प्रेशर की वजह से जो है लुब्रिकेंट की हाई ड्यू टू हाई प्रेशर लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है, और ये जो है यहाँ पे सरफेस की जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है उसको इन्हेंस करती है. ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है वो उसमें जो है वेयर एंड टेयर्स के चांसेस कम होते हैं. It was previously thought that increasing pressure reduced oil film thickness until a spirate broke through, causing metal to metal contact. However, researchers have shown that for mineral oils, the high contact pressure largely increased the viscosity of lubricant. This viscosity increase combined with elasticity of metal causes the film to act like a thin solid film, thus preventing metal to metal contact. तो यहाँ पे ये क्लियर, ये जो ऊपर की जो वर्डिंग्स थी वो नीचे बाकायदा उन्होंने क्लियर कर दिया कि यूजुअली हमारा ये कंसेप्ट होता है कि जो है वो प्रेशर की वजह से जो है विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, और जब विस्कोसिटी ज़ाहिर है जब डिक्रीज होगी तो जो लुब्रिकेंट जो है वो फ्लो करेगा, और फ्लो होने की वजह से जो है वो मेटल टू मेटल कांटेक्ट आ सकता है और किसी भी फेलियर का सबब बन सकता है. बट रिसर्चर ने शो किया है कि कुछ कि मिनरल ऑयल जो हैं जो उन पे जब अगर
हम हाई प्रेशर कंटेक्ट आता है तो वो उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है लुब्रिकेंट्स की। तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और उसके साथ साथ जो मेटल की इलास्टिसिटी है वो कंबाइन उसके साथ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और एक थिक थिन सॉलिड फिल्म से मुराद मतलब थोड़ा गाढ़ा फिल्म जो है वो वहाँ पे क्रिएट करता है, और वो प्रिवेंट करता है मेटल टू मेटल कांटेक्ट को। इसी तरह जो है वो सिस्टम जो है वो स्मूथ चलता है। यू कैन सी दिस इन दैट देयर इज अ थिन फिल्म, solid thin film is created, and that is due to the high viscosity of the lubricant as well as elasticity of the metal that causes this solid thin film between the two rolling surfaces, and thus preventing any wear and tear and smooth functioning of the system. The third one is, you can see it here also, that this is a bearing, two rolling bearing, and due to elasticity of this metal part and pressure of the bearing, thin film is formed between the surfaces. You can also notice it in gears. The third type of lubrication is full fluid film lubrication. This type can be illustrated by reference to condition existing in a properly designed plain bearing. Actually, this type of lubrication is used in plain bearing. Plain bearings are those whose surface are plain. So, if two bearing surface can be separated completely by fluid film, fractional wear of surface is virtually eliminated. Of course, it is if you provide the lubrication between these plane surfaces, so obviously the fractional wear of the surface will be eliminated. Resistance to motion will be reduced to a level ground largely by viscosity of lubricating fluid. फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है उसकी वजह से जो है वो सिस्टम स्मूथ चलता है और रेजिस्टेंस टू मोशन वो भी कम होता है। To generate a lubricating film within a bearing, the opposed surface must be forced apart by pressure generated within the fluid film. One way to introduce the fluid under sufficient pressure at the point of maximum loading by this hydrostatic method, although equally effective at speed, need considerable power and is consequently to be avoided whenever a satisfactory alternative exist। ये कहता है एक तरीका तो ये भी है कि हम फ्लूइड को जो है वो एक सफिशिएंट प्रेशर पे मैक्सिमम लोडिंग पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करें, बट यहाँ पे ये हाइड्रोस्टेटिक मेथड है। हमें कोई मतलब सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव मेथड जैसे कि हाइड्रोस्टेटिक, ये तो हाइड्रोस्टेटिक की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें जो है वो फ्लूइड को मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है वो कहता है कि लुब्रिकेटिंग फिल्म जो है वो बेरिंग पार्ट्स के जो प्लेन बेरिंग्स हैं उनके दरमियान प्रोड्यूस करने के लिए अपोज्ड सरफेसेस में एक फोर्स होनी चाहिए जो कि प्रेशर जनरेट करे, और उस प्रेशर की वजह से जो है वो हमारे पास एक फ्लूइड फिल्म बन जाए। जिस तरह अगर आप देखें तो ये भी सेम ही है, यहाँ पे जो है वो फ्लूइड फिल्म की थिकनेस जो है वो बनिस्बत बाकी दो जो हैं उनसे ज़्यादा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये एक प्लेन बेरिंग है और मतलब ये एक बेरिंग है, ठीक है ना। तो इसके दरमियान जो है हमारे पास ड्यू टू हाइड्रोडायनेमिक मोशन जो है या लोड की वजह से जो है प्रेशर की वजह से जो है वो हमारे पास एक फिल्म जनरेट होती है जो कि वेयर एंड टेयर्स को कम करती है और मोशन की रेजिस्टेंस को भी कम करती है, और सिस्टम जो है वो स्मूथली चलता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू, अच्छा, एबाउ ये उसी फुल जो है इसी की कंटिन्यूएशन है फुल फ्लूइड फिल्म lubrication की। So above a certain critical speed which depend mainly on the size and loading of bearing and viscosity of lubricant, hydrodynamic forces are up which part the surface and permit fluid film lubrication। तो वही है कि एक स्पीड और साइज और लोडिंग पे लोडिंग जो बेयर पे आ रही है और विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स
उसकी वजह से जो हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस जनरेट होती हैं, और उस हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस की वजह से अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी गैप हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस इस पे एक्ट करती हैं, और हमारे पास जो है वो एक फुल फ्लूइड फिल्म जो है वो यहाँ पे एक जनरेट हो जाती है, और वो लुब्रिकेशन का काम लुब्रिकेशन उसमें काफ़ी होती है, और वो स्मूथली सिस्टम या ये जो भी इक्विपमेंट है वो रन करता है. At rest, the fluid film has been squeezed from beneath the shaft, leaving only an absorbed film on the contacting surface. As the shaft starts to revolve, the friction between the journal and bearing bore causes the shaft to climb up the inside of the bearing until torque together with increased thickness of lubricant film overcome frictional resistance and shaft start to slip at the point of contact. ये अगर आप देखेंगे इसकी बात कर रहे हैं कि इनिशियली शाफ्ट है वो बेरिंग के अंदर है, तो वो रेस्ट पोजीशन में, और ये बाज़ाहिर उस पर लोड भी है, जो भी है उस शाफ्ट का अपना वेट है जो भी है, तो इनिशियली यहाँ पे जो है वो सारी जो है ऑयल की जो कंटेक्ट है वो कम होता है, ठीक है ना. लेकिन जब स्टार्टअप होता है और टार्क अप्लाई होता है तो आहिस्ता आहिस्ता डायनामिक फोर्सेस जनरेट होती हैं, और ये शाफ्ट थोड़ा लिफ्ट होता है, और उसकी वजह से यहाँ इनके दरमियान जो है वो एक फ्लूइड फिल्म जनरेट हो जाती है, जो कि स्मूथली रनिंग में हेल्प करता है. द रोटेटिंग शाफ्ट then takes up its equilibrium position where it is supported on fluid film drawn beneath its viscous friction. और जाहिर है जब इसके नीचे फ्लूइड होता है तो वो इसको सपोर्ट भी करता है, चूँकि उस पे हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, और ये जो है फ्लूइड फिल्म जो है वो विस्कस फ्रिक्शंस को भी कम करता है. Physical characteristic of oil and greases. There are certain characteristic of oil and greases that we use during lubrication processes. These are shown below: viscosity index, pour point, flash point, penetration of grease, drop point grease. We will discuss it one by one. Reference will be made to the physical characteristic of lubricants as they affect their selection for various applications. So, for different application, we have different type of uh, oils and greases that we use in our systems. But if you do not know these terminologies, you will not be able to select proper lubricant for your application. These terms are well known to the lubricant supplier, but are not always fully understood by the users. As the lubricant suppliers are fully aware of all the uh, characteristics of oil and grease that we will discuss, but most of us do not know about them. So, brief description of these characteristics are discussed, and if you know them, therefore they are given so that their significance may be appreciated. So, let's start with viscosity. As most of we know that viscosity is resistance to the flow of fluid. So if a fluid is viscous, so it will not flow easily, rather it will take certain time. So this is the most important physical property of lubricating oil. It is the measure of internal friction of resistance to flow. In simple term, it provides a measure of thickness of lubricating oil at a given temperature. Higher the velocity, the thicker will be the oil. Uh, Accurate determination of viscosity involves measuring the rate of flow in capillary tube, the unit of measurement being द सेंटीस्टोक्स. हम जो है विस्कोसिटी को जो है मेजर करने के लिए हमारे पास जो है रेट ऑफ फ्लो इन कैपिलरी ट्यूब है कि उस कैपिलरी ट्यूब में उसका फ्लो रेट क्या है, और इसके यूनिट्स जो है लेते हैं वो सेंटीस्टोक्स हैं. तो as oil become thinner on heating and thicker on cooling, a viscosity figure must always be accompanied by the temperature at which it is determined. तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी टेम्परेचर के साथ साथ इसकी विस्कोसिटी का बिहेवियर क्या है, या टेम्परेचर कम करने से ज़्यादा करने से इसकी विस्कोसिटी कितनी चेंज हो रही है. तो द नंबर ऑफ कमर्शियल विस्कोसिटी सिस्टम कैन बी कंफ्यूजिंग as kinematic viscometers are much more sensitive and consistent. There is a growing tendency to quote kinematic viscosity. तो ये जाहिर है ये जो कमर्शियल विस्कोसिटी सिस्टम है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, और जो काइनेमेटिक विस्कोमीटर्स जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हैं और कंसिस्टेंस हैं. तो
देयर इज ग्रोइंग टेंडेंसी, ये टेंडेंसी ग्रो कर रही है टू कोट काइनेमेटिक विस्कोसिटी के काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी जो है वो ऑयल पे आप डिस्प्ले करें, या आप कह सकते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू भी जो है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो ऑयल पे दी गई हो। The International Standard Organization ISO use kinematic viscosity in its viscosity grade classification। और जो ISO स्टैंडर्ड ISO है वो भी अपनी जो है वो विस्कोसिटी ग्रेड क्लासिफिकेशन में वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी यूज़ करते हैं कि इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये है। Most oil companies in their industrial lubricants nomenclature use this ISO grade number। और बहुत सी कंपनियां जो कि ISO स्टैंडर्ड्स या ISO ग्रेड्स को फॉलो करती हैं तो वो अपने लुब्रिकेंट की नॉमेनक्लेचर्स में इसको भी यूज़ करते हैं। This provides the user with simple verification of conformity regarding viscosity between plant manufacturer and oil supplier recommendation and in monitoring of correct oil usage on his plant। तो ये जो जितने भी नॉमेनक्लेचर्स हैं जो ऑयल पे दी होती हैं ये जनरली दैट इज़ अ सिंपल वेरिफिकेशन होती है। अगर उस पर दर्ज है कि इसका ग्रेड ये है तो वो एक कंफर्मेशन है कि ये प्लांट जो है या मैन्युफैक्चरर या ऑयल सप्लायर जो है रिकमेंड कर रहा है कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए देन यू सेलेक्ट correct oil for usage of your non viscosity index। This is the second characteristics of oil and gas। Now this is the viscosity index may be defined as it is the way of expressing the rate of change of viscosity with the temperature। Actually how the viscosity changes with the temperature, as we know that with the temperature the viscosity decreases, as the temperature increases viscosity decreases, means fluid flow easily, the resistance between the different layers of flows decreases and it flow easily। So viscosity index VI is actually the rate of change of viscosity with the temperature। All oil become less viscous at temperature increases, the rate of change of viscosity varies with different oil and is mainly dependent on type of crude from which the oil is delivered and refining the method। तो विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी है वो डिफरेंट ऑयल की डिफरेंट होती है, और वो डिपेंड करता है मेनली जो क्रूड ऑयल है जिससे हम ऑयल को लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को निकालते हैं, और रिफाइनिंग मेथड्स पे भी डिपेंड करती है। द हायर विस्कोसिटी इंडेक्स फिगर्स द लोअर इज द वेरिएशन इन वेलोसिटी विस्कोसिटी रिलेटिव टू द टेम्परेचर। जितनी विस्कोसिटी इंडेक्स ज़्यादा होगी उतनी जो है वेरिएशन जो है विस्कोसिटी में कम होगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाया भी जाए तो विस्कोसिटी पे जो है इफेक्ट है या उसकी जो वेरिएशंस है वो कम होगी। हायर ग्रेड हायर विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल की बात करूँ, the VI of oil is an important property in application where operating temperature is subjected to considerable change। और हम जाहिर है अगर विस्कोसिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो मतलब जो है उसमें वेरिएशंस कम आ रही हैं, इसीलिए हम जो हमारे जो अपने प्लांट में है सिस्टम है दैट उसमें हीट भी जनरेट होता है, काफ़ी सारे टेम्परेचर वेरिएशंस आ सकती हैं। सो रिकमेंड ये है कि जो जो वो ऑयल जिसकी विस्कोसिटी इंडेक्स ज़्यादा हो तो उसी को आप यूज़ करें ताकि जो है टेम्परेचर चेंज की वजह से उसमें वेरिएशन कम आए और वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हुए अपना फंक्शन परफॉर्म करे। अगर आप कम विस्कोसिटी इंडेक्स के ऑयल को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर के साथ साथ वो पतला होता जाएगा, और एक टाइम के बाद जो है वो अपनी प्रॉपर्टी भी जो है वो लॉस कर देगा, और उसकी वजह से आपका जो प्लांट है या सिस्टम है वो इफेक्ट हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ ना कुछ अभी ऑयल की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल रहा है। तो फ्यूचर में जब कभी भी आपका इन चीज़ों के साथ सामना हो तो यू मे आस्क द सप्लायर के इस ऑयल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या होनी चाहिए, या कौन सी रिक्वायरमेंट है आपकी ऑयल और ग्रीस को सिलेक्ट करते वक्त। द थर्ड वन इज पोर पॉइंट। अब पोर पॉइंट क्या है? दिस इज द रफ मेजर ऑफ लिमिटिंग विस्कोसिटी। ये एक रफ मेजर है, किस तरह है कि एट ए टेम्परेचर अबाउट 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑयल सीजेस टू फ्लो व्हेन वेसल इन विच इट हैज बीन कूल्ड इज हेल्ड
हॉरिजेंटली फॉर 5 सेकेंड। अगर आपके पास एक वेसल है जिसमें आपने ऑयल को कूल किया हुआ है, ठीक है ना, 5 सेकेंड के लिए हॉरिजेंटली, मतलब आपने उस ऑयल को उस वेसल में कूल रखा हुआ है, ठीक है ना, तो जब आप उसको, वो हॉरिजेंटली पड़ा हुआ है और अगर आप उसको टेम्परेचर कम बिलो द 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब आप उसको 2.5 से अबव लेकर जाएंगे तो वो ऑयल मूव नहीं करेगा। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है कि द पोर पॉइंट इज अ गाइड to behavior and care should also be taken that operating temperature are above figure specified by the oil manufacturer at the pour point of given oil, कि जो ऑयल का जो पोर पॉइंट है आपने उसको उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे रखना है। अगर आप उसको कम पे रखेंगे तो वो ऑयल जो है या वो सिस्टम में जो ऑयल पड़ा हुआ है वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दिस पोर पॉइंट इज मेजर ऑफ लिमिटिंग विस्कोसिटी, वो विस्कोसिटी को लिमिट कर देता है। सो अबव दिस टेम्परेचर जो है वो, अबव जो टेम्परेचर है वो जो स्पेसिफाइड है ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ऑयल, हमेशा उसको उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है वो आप रखें। फ्लैश पॉइंट भी मैं आपको जनरली इस तरह बता सकता हूँ कि फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे जो है वो ऑयल जो है वो स्पार्क ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस कर सकता है या फ्लैशिंग इफेक्ट उसमें आ सकती है। द फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज द टेम्परेचर एट विच इट गिव ऑफ अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन सफिशिएंट वेपर टू फॉर्म अ फ्लेमेबल मिक्सचर विद द एयर। सो इसका भी अपना फ्लैश पॉइंट कहते हैं या फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर भी कह सकते हैं हम इसे, कि दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ स्पॉन्टेनियस कंप्रेशन। और ये वो नहीं है कि मतलब जो हम वो टेम्परेचर नहीं है कि जो कंबजन हो रही हो तो उसकी नहीं, लुब्रिकेंट्स की अपनी भी एक फ्लैश पॉइंट है, एक अपना स्पेसिफाइड टेम्परेचर है जिस आपने उस लुब्रिकेंट्स को उस फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर से नीचे पे ऑपरेट करना है ताकि उसमें वो फ्लैश पॉइंट की वजह से जो है फ्लेमेबल मिक्सर ना बने। और आप इसकी अगर वो बनता है तो जाहिर है वो ऑयल जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तो आपने फिर वक्तन प वक्तन जो है अपने प्लांट की कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो उसको उसके लेवल को बरकरार रखना है। The test is an empirical one and the result depend upon the instrument used and the prescribed condition. For example, flash point may be closed or open depend on whether the test apparatus held a lid or not. अगर वो जो apparatus है जिसमें हम फ्लैश पॉइंट को टेस्ट कर रहे हैं तो अगर उसका लिड ओपन है तो वो ओपन फ्लैश पॉइंट टेस्ट होगा, अगर क्लोज है तो क्लोज पॉइंट होगा। एज फार एज lubricant oil are concerned, the test is of limited significance, although it can be indicative of contamination, for example the dilution of crankcase oil by fuel। अच्छा, ये कहता है कि जो टेस्ट है लुब्रिकेशन ऑयल के फ्लैश पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए उस वो उसकी सिग्निफिकेंस लिमिटेड है, क्योंकि जाहिर है हम लेवल चेक करके हमें पता चल जाता है कि हमारा ऑयल जो है वो कंज्यूम हो रहा है कि नहीं, तो हम उसको दोबारा जो है अपने लेवल पे बरकरार रखते हैं। बट हो सकता है कि जो है अगर ज़्यादा जो है वो उसकी कंजम्पशन हो रही है तो इसमें जाहिर है कि क्रैंककेस ऑयल में जो है वो कहीं पे फ्यूल जो है वो डाइल्यूट हो सकता है, उसके साथ मिक्स हो सकता है और बर्निंग ज़्यादा हो सकती है। सो आपने हमेशा जो है वो ऑयल को जो है वो फ्लैश पॉइंट्स उसके आप यू मस्ट नो कि फ्लैश पॉइंट अगर उसका फ्लैश पॉइंट कम है तो मीन्स उसमें चांसेस ज़्यादा है कि वो जो है ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो है आपका फ्यूल कंज्यूम हो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेमेबल मिक्सचर। सो ऑयल की जो है वो फ्लैश पॉइंट भी वो ज़्यादा होना चाहिए। Penetration of grease. The most important physical property of lubricating grease is its consistency, which is analogous to the viscosity of liquid fluid। जिस तरह हम फ्लूइड की विस्कोसिटी की बात करते हैं कि ड्यू टू विस्कस फ्लूइड जो है वो थिन लेयर्स जो हैं वो मूविंग सरफेस के दरमियान बनती हैं, इसी तरह इसकी एनालॉगी जो है ग्रीस की वो जो है लुब्रिकेटिंग ग्रीस की जो प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी है कि वो उस सरफेस के दरमियान जो है वो अवेलेबल होता है, और ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिस तरह लिक्विड की एक विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्लूइड के जो कि फ्लूइड फ्लो और रेजिस्टेंस को कम करने में मदद देती है। दिस इज डिटरमाइंड बाय एडेंटेशन टेस्ट
which is a weighted metal cone is allowed to sink into grease for a specified time. तो जो विस्कोसिटी को हम फ्लूइड की मेजर करते हैं, तो इसी तरह हम जो है वो ग्रीस की जो है इस प्रॉपर्टी को इस तरह मेजर करते हैं कि एक वेटेड मेटल कोन होता है, उसको हम ग्रीस में रख देते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, और वो उसमें इन होता रहता है. सो द डेप्थ टू विच द कोन पेनिट्रेट इन टेंथ ऑफ मिलीमीटर्स इज अ मेजर ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी. और फिर वो जितना उसमें डेंट प्रोड्यूस हो जाता है या जितना वो उसमें इन होता है, तो उसकी जो जो डिस्टेंस है वो उसकी कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी को बताता है. अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा हो तो मीन्स कि ये ग्रीस जो है वो काफ़ी नर्म है, या एक किस्म का आप कह सकते हैं कि वो उसमें उस लेस विस्कस, आप एक किस्म का अगर कंपेयर करें तो. अगर वो उसमें जो डेंट है वो उसका डिस्टेंस कम है, तो वो कहते हैं कि ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है. There is a widely accepted scale that of American National Lubricant Grease Institute that relates penetration to consistency number. और ये इदारा जो है अमेरिका का अमेरिकन नेशनल लुब्रिकेंट ग्रीस इंस्टीट्यूट, ये जो इस कंसिस्टेंसी नंबर, इस पेनिट्रेशन जो जो नंबर है, डिस्टेंस है, उसको एक कंसिस्टेंसी नंबर फिर अलॉट करता है कि अगर इतना डिस्टेंस जो है वो मेटल कोन ट्रेवल करता है, तो इसका इस ग्रीस का कंसिस्टेंसी नंबर ये है, और बेस्ड ऑन दैट कंसिस्टेंसी नंबर यू विल सेलेक्ट योर ग्रीस. The penetration test is used mainly to control manufacture and to classify grease and is within limit a guide to selection. और ये जो टेस्ट का मेन पर्पस ये है कि ये मैन्युफैक्चरर को जो है वो अवेयर करे कि वो जो है ग्रीस की क्वालिटी को कंट्रोल करे, ठीक है, और उसको क्लासिफाई करे विद इन अ नंबर के, वो उस नंबर के डिफरेंट जो है नंबर्स के दरमियान. ज़ाहिर है जो ग्रीस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो मुख्तलिफ ग्रेड्स के प्रोड्यूस करेगा, सो ही हैज़ टू बी लिमिटेड विद इन दैट, सो दैट जो बायर है वो दे कैन इजीली they can easily be able to select the required consistency number grease. Penetrations are often qualified by term worked and unworked. As greases are thixotropic, that is, they soften because of shear but harden again after shear has stopped. The work penetration for particle grease may be appreciably greater than unworked penetration. The difference between these two figures may result the useful guide of selection. अच्छा, ये कह रहा है कि जो है पेनिट्रेशन को वर्ल्ड और अनवर्ल्ड भी क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि ग्रीसेस थिक्सोट्रॉपिक्स हैं, और जब इन पे शेयर फोर्सेस आती हैं तो ये नरम हो जाते हैं, और जब शेयर फोर्स हट जाती हैं, ज़ाहिर है मूवमेंट के दौरान शेयर फोर्स आती है तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब वो शेयर फोर्स हट जाती हैं तो वो अगेन जो है वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना. इसलिए हम कहते हैं कि द वर्ल्ड पेनिट्रेशन फॉर पर्टिकुलर ग्रीस में भी अप्रिशिएबल. जो वर्क पेनिट्रेशन है, मतलब जो ज़्यादा मिकदार में है, ठीक है ना, तो वो जो है वो ग्रेटली अप्रिशिएबल है देन अनवर्क पेनिट्रेशन. जिस मीन्स ये है कि अगर जिसमें पेनिट्रेशन आ रही है दैट इज़ वर्क पेनिट्रेशन, और जिसमें पेनिट्रेशन नेग्लिजिबल है तो वो अनवर्क पेनिट्रेशन है. सो the work penetration for particular grease may be appreciably greater than the unworked penetration. Drop point of grease. Now this is another physical characteristic of oil and gas, and the drop point of grease is an indication of change from soft solid to viscous fluid. के जब grease जो है वो एक solid form से fluid में convert होता है, तो drop point जो है वो उसकी indication करता है कि ये उसका ज़ाहिर है एक पॉइंट है, एक नंबर होगा जो कि डिफाइन करता है कि कितने उस काम के बाद जो है वो सॉफ्ट सॉलिड से विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट होता है. इट्स वैल्यू डिपेंड कम्प्लीटली ऑन कंडीशन ऑफ टेस्ट, पर्टिकुलरली द रेट ऑफ हीटिंग, कितना आप उसको हीट, कितना टेम्परेचर है जहाँ पे वो ग्रीस अप्लाई है विद इन द surfaces. The grease sample, which is held in small metal cup with an orifice, is heated at predetermined rate. अच्छा, ये टेस्ट का प्रोसीजर बता रहा है कि एक स्मॉल मेटल कप है जिसमें एक ऑरिफिस है, एक सुराख है, ठीक है, उसमें इस ग्रीस सैंपल को डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है एक प्री डिटरमाइंड रेट से, एक फिक्स डिटरमाइंड रेट है उससे हीट किया जाता है, और फिर चेक किया जाता है कि
किस टेम्परेचर पे या किस टेम्परेचर पे जो है उससे वो ग्रीस से जो है वो एक ड्रॉप गिरता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सही है, तो ये उस ड्रॉप पॉइंट, that is the drop point of, actually that temperature is the drop point of the grease. So the drop point is the temperature at which a drop of sample falls from cup. The drop point of limited significance as far as the user is concerned, for it gives no indication of condition of grease at lower temperature or of change in consistency or structure with the हीट। अच्छा, ये ड्रॉप पॉइंट कोई सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस लिमिटेड है क्योंकि ये कह रहा है कि इट गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ कंडीशन ऑफ ग्रीस। ये एक सिर्फ नंबर, एक टेम्परेचर बताता है कि इस टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिड ग्रीस जो है वो विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये कोई इंडिकेशन नहीं देता ऑफ ग्रीस एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, और ऑफ चेंज इन कंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चर विद इन द हीट, या उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो है या कंसिस्टेंसी के बारे में कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करता। ये जस्ट आपको बताता है कि वो सॉलिड से विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया। इट इज़ अ वेरी रफ इंडिकेशन ऑफ ग्रीस रेजिस्टेंस टू हीट एंड अ गाइड ऑफ टू मैन्युफैक्चर। जनरली ये एक रफ इंडिकेशन है ग्रीस की रेजिस्टेंस अगेंस्ट हीट। ये सिर्फ एक रफली एस्टिमेट्स है, हम इसके ड्रॉप पॉइंट से हमें इतना अंदाज़ा हो जाता है कि ये ग्रीस जो है उतने टेम्परेचर पे मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। सो दैट इज़ बेसिकली अ गाइड टू मैन्युफैक्चरर के, वो मैन्युफैक्चरर को एक अंदाज़ा होता है कि इस टेम्परेचर से अगर मैं ज़्यादा जाऊंगा तो ये जो अवेलेबल ग्रीस है जो प्रोड्यूस हो रही है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू विस्कस फ्लूइड। The difference between the highest temperature at which grease can be used as the drop point varies with very much between the types। अच्छा, ये ड्रॉप पॉइंट्स जो है ग्रीस की हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पे वो पिघलता है, ठीक है ना, और जिसके फ्लूइड में कन्वर्ट होता है, एंड दैट is usually depend on the type of grease you are using. So different types of grease have different drop points. It is at its maximum with some soda grease and much smaller with multi-purpose lithium products and modern complex greases। अच्छा, सोडा ग्रीसेस हैं उसकी ड्रॉप पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मल्टीपर्पस लिथियम प्रोडक्ट्स एंड मॉडर्न कम्प्लेक्स ग्रीसेस जिसकी जो है ड्रॉप पॉइंट्स कम होती हैं। Additives. Now we will talk about additives, that what are additives and why we use additives. So additives are certain, you can say, minerals or certain chemicals that are added in your oil in order to enhance its performance. Much highly stressed modern machinery runs under condition in which straight mineral oil is not adequate। हमारे जो मॉडर्न मशीन हैं वो ज़ाहिर है आपको पता है कि 24 घंटे भी चलती हैं या काफ़ी उस पर स्ट्रेस होता है इन टर्म ऑफ आउटपुट के, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए। तो ऐसी कंडीशन में सिंपल माइनरल ऑयल जो है वो एडिक्वेट नहीं होते टू 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 रिड्यूस द फ्रैक्शंस या अदर जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लुब्रिकेशन की हमने स्टार्ट में पढ़ी उनको अचीव करने के लिए सिंपल mineral oils are not adequate. So for that purpose, even the highest quality mineral oil can be unsatisfactory in response of its resistance to oxidation and its behavior under pure boundary condition। और जो हाई क्वालिटी मिनरल ऑयल्स हैं वो भी उनका रिस्पांस भी अनसेटिस्फैक्ट्री होता है क्योंकि ज़ाहिर है आप आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशंस भी आ सकती हैं ड्यू टू टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक जो है वो कंडीशन की वजह से ऑक्सीडेशंस होती हैं और केमिकल रिएक्शंस होते हैं और स्लेजेस भी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके आउटपुट में स्लेजेस भी बनते हैं और जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं और इसीलिए जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी माइनरल्स भी अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स आपको देती हैं। सो इन ऑर्डर टू गेट अ गुड रिस्पॉन्स we use additive in our lubricating oil so in order to enhance their performance, but it is possible to improve this characteristic by addition of relatively small amount of complex chemicals। This use of additive resemble in many ways the modification of property of steel by addition of small amount of other chemical।
अच्छा, ये जो एडिटिव्स जो ऑयल में यूज करते हैं, इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है जिस तरह आपने इंजीनियरिंग मटेरियल या मेटलर्जी में पढ़ा होगा कि जब हम आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम को देखते हैं तो उसमें हम अगर थोड़ी बहुत एडिशन करें इन ऑर्डर टू गेट गुड प्रॉपर्टी ऑफ स्टील्स, हम करते हैं उसमें कि अगर इतने परसेंट ये डाला जाए तो ये स्टील की जो है प्रॉपर्टी होगी, ये टेम्परेचर है, सही है, वगैरह वगैरह। तो इसकी से ये उसी से ही रिजेंबल इसको दे रहे हैं कि हम अपने लुब्रिकेटिंग ऑयल में भी एडिटिव को डालते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़े। जिस तरह आप देखते हैं कि अगर हम फ्यूल डलवाते हैं तो फ्यूल में भी कुछ एडिटिव डाले जाते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, या अदर इसी तरह की कोई एग्जांपल्स अगर आपके जहन में है तो इट विल बी ऑफ वैल्यू टू हैव सम नॉलेज ऑफ इफेक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ एडिटिव्स। नाउ वी विल डिस्कस कि उसके आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि क्या इफेक्ट्स होते हैं एडिटिव की, क्या एडवांटेज हम एक किस्म का कह सकते हैं कि उसमें क्या होगा। तो वो वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। एंटीऑक्सीडेंट एडिटिव्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मींस के when mixed with oxygen, lubricant oil undergoes chemical degradation, result in the formation of acidic product and sludges। जाहिर है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, केमिकल रिएक्शंस आपके सिस्टम में मतलब टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर की वजह से जो अवेलेबल एयर्स की उसके साथ वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके जो है वो केमिकल रिएक्शन करता है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। उस ऑक्सीडेशन की वजह से जो है वो एसिडिक प्रोडक्ट और स्लेजेस बनते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड भी करते हैं और आपकी जो लुब्रिकेंट्स ऑयल हैं वो भी कंज्यूम हो रही होती हैं। सो दिस रिएक्शन विच इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज कॉपर एंड कंपोजिशन ऑफ ऑयल कैन बी डिलेड द इंक्लूजन ऑफ सूटेबल एडिटिव्स। अगर आप इनमें ये सूटेबल एडिटिव्स डालें जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं, ठीक है ना, तो वो जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को प्रमोट नहीं करेगा और जो है वो इन चीज़ों को जो है इन सूटेबल एडिटिव्स की वजह से ये चीज़ें डिले हो जाएंगी और आपकी ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैं और एसिडिक प्रोडक्ट्स और स्लग ये फॉर्म नहीं होंगे। Antioxidants are most extensively used additive and will be found in oil and grease, which are expected to operate for considerable period or under condition that would promote oxidation. Typical example are crankcase oil and bearing grease। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो वाइडली यूज होते हैं ऑयल और ग्रीस में, और इनका काम ही ये होता है कि वो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जो है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो प्रोमोट ना करे, ठीक है ना। या इसको जुमले को अगर आप पढ़ें, विच आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट फॉर कंसिडरेबल पीरियड, कि वो एक खास पीरियड तक जो है वो ऑपरेट करे विदाउट ऑक्सीडेशन प्रोसेस और अंडर कंडीशन दैट वुड प्रोमोट ऑक्सीडेशन, या अगर उस सिस्टम में ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसका काम ये है कि वो उसको रोके। और टिपिकल एग्जांपल उसकी क्रैंक केस ऑयल है और बेरिंग ग्रेसेस हैं, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं। एडिटिव मस्ट बी एंटी फोम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंटी फोम? एंटी फोम से मतलब ये है कि जब लुब्रिकेट लुब्रिकेंट्स जो है वो फ्लो करते हैं या आप वो मोशन में होते हैं तो उसमें चर्निंग इफेक्ट की वजह से जो है बबल्स बनते हैं और वो बबल जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अब वो जब सरफेस के ऊपर आते हैं तो वो एयर जो है वो उसमें ट्रैप हो जाती है, एयर को वो जाने नहीं देता, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है वो लुब्रिकेंट जो है वो हीटेड होता जाता है और जो है हीट हो जाता है और वो सिस्टम जो है कूल नहीं हो पाता और उसकी वजह से जो है टेम्परेचर बढ़ के आपके जो है वो सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आने का या ब्रेकेज आने का खतरा हो सकता है। इसलिए हम उसमें लुब्रिकेंट्स में एंटी फोम्स डालते हैं ताकि वो एयर बबल्स ना बने, और जब एयर बबल्स नहीं बनेंगे तो जो उसमें गैसेस हैं या एयर है ऑयल के अंदर तो वो इजीली जो है वो पास होंगी और जो है लुब्रिकेंट जो है वो कूल रहेगा और वो सिस्टम जो है वो क्विकली रन करेगा, इजीली रन करेगा। The entertainment of air in lubricating oil can be brought about by operating condition, for example, churning, mixing, and by bad design such as return pipe is not submerged। अक्सर ये होता है कि डिज़ाइन सही नहीं है और जो रिटर्न पाइप है वो प्रॉपरली उसमें जो मेन टैंक है उसमें सबमर्ज नहीं होता, तो ऑयल जब
जाता है तो टर्बुलेंस की वजह से उसमें एयर बबल्स बनते हैं. The air bubbles naturally rise to the surface, and if they do not burst quickly, a blanket of foam will form on the oil surface. Further, the air escape is thus prevented and oil become aerated, bubbly, bubbles बन जाते हैं. Oil in this condition can have adverse effect on the system that is, in extreme cases, could lead to machine failure. The function of antifoam is to assist in the burst of air bubbles when they reach the surface of oil. So antifoam का काम ये है कि वो bubbles create ना होने दे. अच्छा. Now anti-corrosion. By anti-corrosion means that these lubricating oils help in reducing the corrosion. So they generally stick to the surface, and that will prevent the system to go under the chemical reaction. In order to prevent it, we use additive with anti-corrosion. We use anti-corrosion additives in our oil. The product of oil oxidation will attack metals, and this can be prevented by keeping the system free from pro-oxidative impurities and by use of antioxidants. ज़ाहिर है जब वो ऑक्सीडेशन का अमल होगा तो उसमें जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और वो रस्ट क्रिएट करेगा. तो एंटी करोजन एडिटिव का मकसद ये है कि जो है वो सरफेस पे एक लेयर बना ले और उसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन जो है उस मेटल के साथ रिएक्शन ना कर कर पाए और जो है वो सिस्टम जो है वो रस्ट फ्री रहे. दिस एडिटिव विल नॉट हाउएवर प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ फेरस सरफेस when air and waters are present in mineral oils. Agar if there are certain water or air particles in oil, so that will not prevent rusting of ferrous surfaces. But the presence of absorbed air and moisture is inevitable expected in lubricant system, and therefore oil must inhibited withdrawn against rusting. So फिर भी ये जो है वो कुछ ना कुछ अगर अगर आप ऑयल में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं या सिस्टम में कहीं से भी इन ऑयल के साथ शामिल हो जाती हैं तो देन इट विल create certain problem. So these additives which are homogeneously mixed with oil have an affinity for metal. जब आप इस एडिटिव्स को ऑयल में होमोजीनियसली मिक्स करते हैं हैविंग सेम आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है ना, तो उसको आप मिक्स करते हैं तो इसकी एक मेटल सरफेसेस के लिए एक मोहब्बत जाग जाती है, एक मोहब्बत सी बन जाती है और उसके साथ चिपक जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एंड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब ऑयल फिल्म इज फॉर्म ऑन द मेटल सरफेस व्हिच प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड थस जो है वो रस्टिंग प्रोसेस जो है वो आपका आगे नहीं बढ़ता, वो जो रस्टिंग है वो नहीं होती सिस्टम. एंटीवेयर्स. The increasing demand being made on equipment by the requirement for increasing output from smaller unit create problems of lubrication in even in system where full fluid film condition generally exists. अच्छा, जितना सिस्टम पे ज़ाहिर है डिमांड आउटपुट के लिए ज़्यादा आता है तो सिस्टम को हम ज़्यादा रन करते हैं तो उसमें जो है वो लुब्रिकेशंस की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसमें वेयर एंड टेयर्स की प्रॉब्लम आती हैं. सो ज़्यादा ऑपरेट करने की वजह से, ज़्यादा डिमांड की वजह से. सो फॉर इंस्टेंट एट स्टार्ट अप आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट boundary lubrication condition can exist and mechanical wear that take place could lead to equipment failure. तो इसलिए हम उसमें जो है फ्यूज में एंटी एडिटिव यूज करते हैं, एंटी वेयर, इन ऑर्डर टू reduce the wear and tear. Anti-wear additives by their polar nature help the oil to form a strongly absorbed layer on the metal surface which resists displacement under pressure, thus by reducing friction under boundary condition. Extreme pressure. For extreme pressure, we also use additive, and their primary function is to absorb or to work under high extreme pressure smoothly. Where high loading and severe sliding speed exist between two metal surfaces, any oil film present is likely to squeeze out. So that is the problem. Due to a high pressure or loading, the oil film between the
surface is squeezed out. So for that, under these conditions, very high instantaneous pressure and temperatures are generated. So without the presence of extreme pressure additives, the asperities severities would be welded together. जो severities हैं वो generate होंगी और and then torn apart, और वो parts को torn कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं. Extreme pressure additive react at these high temperature with the metal or oil component to form compounds which are more easily deformed and shared than metal itself, and to prevent welding, to prevent severities. अच्छा, ये क्या करती हैं, ये मेटल्स जो हैं, ये जो एडिटिव्स हैं, वो हाई टेम्परेचर पे मेटल की सरफेस के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड सा क्रिएट कर लेती हैं. और ये कंपाउंड जो है, जाहिर है जब सिस्टम पे प्रेशर आता है तो इस कंपाउंड पे भी आता है, तो वो कंपाउंड शेयर फोर्स की वजह से जो है वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेती है, बजाय कि उस सरफेस पे प्रेशर आए और वेयर टेयर हो. ठीक है ना, तो वो उस सरफेस को शेयर कर लेती है और वो मेटल को प्रिवेंट करती है डैमेज होने से. So oil containing extreme pressure additives are generally used in heavily loaded gearbox, which are also subjected to shocking loads. So highly loaded gearbox में जो है वो जो ऑयल यूज होता है उसमें एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव इंक्लूड किया जाता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम शॉकिंग लोड्स. डिटर्जेंट डिस्पर्सेंट. अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन फॉर्म in internal combustion engine combined with water and unburned fuel will form undesirable sludge which can be deposited in engines to reduce its operation life and efficiency. Detergent as dispersion additive prevent the agglomeration या accumulation of these products and their deposition in oil ways by keeping the finely divided particle in suspension in the oil. They are used in engine lubricant oils where combined with the antioxidant they prevent piston ring sticking. They are essential for high speed diesel and desirable for gasoline engine. डिटर्जेंट हम नॉर्मली कहते भी हैं सफाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना. सो ये भी एडिटिव्स हैं जो कि ऑयल में यूज होती हैं, कि जब भी ऑयल में अगर पानी आ जाता है या कहीं पे अनबर्न फ्यूल जो है वो आपके ऑयल के साथ, जाहिर है इंजन में जो है वो बर्निंग पूरी तरह नहीं होती, तो कुछ अनबर्न ऑयल जो है वो अनबर्न फ्यूल जो है वो ऑयल के साथ मिक्स हो सकता है और ऑक्सीडेशन की वजह से अनडिजायरेबल स्लेजेस बन सकती हैं जो कि नीचे आके या जो कि उस एरिया में भी जो है चिपक जाती हैं और जो आपके ऑयल पैन में या जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे आके एकोमुलेट हो जाती हैं या सरफेस के साथ स्टिक हो जाती हैं और आपकी जो है सिस्टम की ऑपरेटिंग लाइफ को भी इफेक्ट करती हैं और इसकी एफिशिएंसी को भी. तो ये डिटर्जेंट का और डिस्पेरेंट का काम ये है कि वो को सरफेस पे जमने ना दे और वो जो है वो उसको उन एरिया से साफ कर ले, ठीक है ना, ताकि वो जो है सिस्टम अपनी ऑपरेशन लाइफ ठीक तरीके से परफॉर्म कर सके. इसकी एक सिंपल एग्जांपल इन्होंने दी है कि ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स और ये डिटर्जेंट जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल में डाले जाते हैं ताकि जो है पिस्टन रिंग्स जो है वो मूव करते हैं सिलेंडर के साथ. तो अगर ये स्लेजेस वहाँ पे हों तो वो पिस्टन रिंग्स के स्टिक होने का खतरा है जिससे आपका इंजन जो है वो सीज हो सकता है. सो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वो उस गंदगी को या जो भी स्लेजेस अवेलेबल होती हैं वो उसको साफ करें, ठीक है ना. और ये हाई स्पीड डीजल इंजन के लिए भी ज़रूरी है और आम अपनी जो गाड़ी गैसोलीन इंजन हैं उनके लिए भी डिज़ायरेबल है. विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर, ये भी एडिटिव ऐसे एडिटिव्स हैं जो कि उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करते हैं. विस्कोसिटी इंडेक्स हमने पढ़ा था कि विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विद द टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी जो है वो उस कितने रेट से वो चेंज हो रही है, ठीक है ना. तो हमने ये भी कहा था कि हाई विस्कोसिटी इंडेक्स इज रिकमेंडेड फॉर ऑयल, ठीक है. तो हम जो है वो ऑयल में विस्कोसिटी इंडेक्स improver additives भी include करते हैं in order to enhance its viscosity. When mineral oils are used over an extended temperature range, it is frequently found that natural viscosity temperature relationship result in excessive thinning out in high temperature region. अगर आप देखें तो अगर आप अपने जहाँ जिस एरिया में आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं प्लांट में या सिस्टम में, ठीक है ना,
तो अगर वो हाई टेम्परेचर एरिया है तो वो ऑयल जो है वो टेम्परेचर की वजह से जल्दी थिन हो जाता है। तो उसको, उसकी थिकनेस को या उसकी विस्कोसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर यूज़ करते हैं एज एडिटिव, सो ताकि उसकी जो है वो विस्कोसिटी इफेक्ट ना हो। If the desired fluidity is to be maintained at lower region, the addition of certain polymer, and these polymers are viscosity index improver within the limit correct this situation. They are of particular value in preparation of lubricating oil for systems sensitive to change in viscosity such as hydraulic control. They are also used in multi-grade engine oil. I think there is nothing difficult in that. Acha, engine lubricants. The type of power, what are the type of engine lubricants? We'll discuss this. The type of power or fuel supply available will influence the decision on the prime mover to be used. जो टाइप ऑफ फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं या फ्यूल सप्लाई, वो इन्फ्लुएंस करती है आप डिसीशन, आपके डिसीजन को कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करें या कौन सा जो है वो लुब्रिकेंट यूज़ करें. This is often electric power, but many items in plants such as compressor, generator, or works locomotive will be powered by diesel engine, as will most of heavy goods vehicles used in and outside of the work. The oil for this engine have several functions to perform while in use. वही चीज़ें हैं कि they must provide lubricating film between the moving parts to reduce the friction and wears, hold product of combustion in suspension, prevent formation of sludges and assisting in cooling engine. जो पीछे हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े थे लुब्रिकेशन का, तो इसका काम यही होता है कि हम इन चीज़ों को प्रिवेंट करें. ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो इंजन लुब्रिकेंट्स को केयरफुली चूज़ करते हैं उसके अपनी ग्रेड्स के हवाले से, जो कि हमारे फंक्शंस को functions के लिए बेहतर हो. Unless the lubricant chosen fulfill these conditions successfully, deposits and sludges will form with the consequent undesirable increase in wear, tear and decreased life use. अगर आप ठीक तरीके से लुब्रिकेंट को चूज नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो आप ये मसले वेयर टेयर्स और वेयर रेट ज़्यादा बढ़ेगा, इंजन की लाइफ डिक्रीज होगी और जो है उसमें स्लेजेस भी जनरेट होंगी. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while selecting the engine lubricants. ये भी वही चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा जनरली बता देता हूँ. वही है फ्रैक्शनल वेयर्स. If the effect of frictions are to be minimized, a lubricant film must be maintained continuously between the moving surface. जाहिर है जब भी मूविंग सरफेस के दरमियान अगर आप फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं, सो देयर मस्ट बी always be a lubricant film must be available between these surfaces. Two type of motions are encouraged in engine: rotary and linear. दो तरीके की मोशन होती हैं, रोटरी होती हैं और लीनियर्स होती हैं. A full fluid film between moving parts is the ideal form of lubrication, but in practice, even with rotary motion, this is not always achievable. कह रहा है कि मूविंग पार्ट्स के दरमियान आइडियली एक फुल फ्लूइड फिल्म का अवेलेबल होना ज़रूरी है, बट ये हमेशा अचीव नहीं हो सकती. क्यों नहीं अचीव हो सकती? एट लो इंजन स्पीड्स, फॉर इंस्टेंस, बेयरिंग लुब्रिकेशन कैन बी अंडर बाउंड्री कंडीशंस. लो स्पीड में जो है वो बेयरिंग लुब्रिकेशन जो है वो बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए. द लीनियर स्लाइडिंग मोशन बिटवीन piston ring and cylinder wall creates lubrication problems that are some of most difficult to overcome in engine. The ring is exerting a force against the cylinder wall while at the same time ring and piston are moving in the cylinder with a sliding action. Also, the direction of piston motion movement is reserved on each stroke. To maintain full fluid oil or on the cylinder walls under this condition is difficult and lubrication boundary lubricant can exist. ये तो आपको पता है कि जाहिर है जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है तो उसकी जो पिस्टन रिंग्स हैं वो सिलेंडर्स के साथ जो है वो स्लाइड करते हैं और वो एक ऑयल वो एक सीलिंग के तौर भी प्रेशर को कायम करने के लिए, और इनमें कंप्रेशन रिंग्स जो होती हैं वो एक सीलिंग क्रिएट करता है ताकि प्रेशर जो है अंदर जनरेट हो, इफेक्टली प्रेशर लीकेज ना हो. और ऑयल रिंग्स होती हैं जो कि ऑयल्स को इसके साइडों से नीचे लेकर जाती है, एंड देन जब पिस्टन मूव करता है तो फिर जो है वो उसके साइडों से जो है वो एक किस्म का ऑयल कलेक्ट करती है या उससे उसकी सरफेस से नीचे लेकर आती है. ठीक है ना,
तो इस कंडीशन में जो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है लीनियरली, और ये रिंग्स जो है वो ऑयल्स को जो है वो ऊपर से, जाहिर है कंटिन्यूस एक साइकिल होता है, तो वो उसके वॉल्स से जो है वो ऑयल्स को नीचे लेकर आते हैं, और फिर ऊपर से जाहिर है वो ओवरिंग रहती है। तो इस सिचुएशन में फ्लूइड फिल्म ऑयल जो है वो मेंटेन करना मुश्किल होता है, और और ऐसी कंडीशन में जो है वो बाउंड्री लुब्रिकेशन अवेलेबल होती है, जाहिर है क्योंकि उसकी सरफेस पे एक थिन लेयर जो होती है वो अवेलेबल होती है। फ्रैक्शनल वेयर विल अकर इफ lubricant film is either absent or unable to withstand the pressure being exerted। अगर ये फ्लूइड फिल्म थिन फ्लूइड फिल्म नहीं होगा, या एक हाई प्रेशर की वजह से अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता, तो फ्रैक्शनल वेयर एंड टेयर वहाँ पे होगी। द lubricant will then be contaminated with metal wear particle which cause the wear in other engine parts and they carry out rounded by the lubricant। जाहिर है जब वेयर एंड टेयर होगी तो उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, और उस स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो फिर लुब्रिकेंट्स के साथ मूव करेंगे, और दूसरे पार्ट्स के साथ और दूसरे पार्ट्स में जहाँ पे लुब्रिकेशन का साइकिल पूरा चल रहा है, तो वहाँ पे वो जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी अदर पार्ट्स को जो है वो डैमेज कर सकती हैं। ठीक है ना, इसलिए हम अगर आप देखें तो हम फिर वहाँ पे लुब्रिकेटिंग फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि अगर लुब्रिकेंट्स में कहीं पे भी बड़े पार्टिकल्स हों तो वो वहाँ पे उसको छान लेता है, और फिर जो है लुब्रिकेंट्स को अलाउ करता है टू टू मूव अराउंड द system। Chemical wears. Another major cause of wear is the chemical action associated with inevitable acidic product of fuel combustion। अच्छा, फ्यूल कम्बशन जब होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें एसिडिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ठीक है। दिस केमिकल वेयर ऑफ सिलेंडर बोर्स कैन बी प्रिवेंटेड by having an oil film which is strongly adherent to metal surface involved in which they rapidly heal when a tiny rupture occurs। दिस इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ केमिकल एडिटिव नोन एज करेशन इनहिबिटर। वही चीज़ें हैं केमिकल वेयर्स जो है, असल में नाम दिया हुआ है केमिकल वेयर। केमिकल वेयर है क्या चीज़? केमिकल वेयर जब जाहिर है सिलेंडर के अंदर कहीं पे बर्निंग होती है तो उसमें एसिडिक प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, जो कि आपकी सरफेस के साथ रिएक्शन करके उसको ख़राब कर सकती हैं। तो इंजन लुब्रिकेंट्स का मकसद ये है कि वो सरफेस के साथ एक लेयर्स बनाए रखें, और उसको रिएक्शन करने ना दे सरफेस के साथ, ताकि उस सिलेंडर में या उस सरफेस में जो है वेयर टेयर ना हो सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने लुब्रिकेंट में जो है एडिटिव डालेंगे, जिसे हम कोरोजन इनहिबिटर भी कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, एंटी वेयर एंटी कोरोजन एडिटिव्स। Product of combustion and fuel dilution. As it is not possible to maintain perfect combustion condition at all times, contamination of oil by product of combustion is inevitable, unavoidable। मीन्स जो कंबशन हो रही है उसमें जो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एसिडिक प्रोडक्ट बन रही हैं, तो उसको आप अपने ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल में शामिल होने से नहीं रोक सकते। दिस कंटेमिनेशन कैन आइदर सॉलिड और लिक्विड। When an engine idles or run with an overrich mixture, the combustion process is imperfect and soot will be formed। जैसे कि आपको पता है कि अगर कंबशन इंजन खड़े, एक गाड़ी है वो खड़ी हुई है और वो इंजन रन कर रहा है, ठीक है ना, खड़े पे ही वो रन कर रहा है, और आपका फ्यूल मिक्सचर जो है वो ओवर रीच है, मीन्स कि उसमें एयर फ्यूल रेशो प्रॉपर नहीं है, उसमें फ्यूल की मिकदार ज़्यादा है, तो जाहिर है वो कंबशन पूरी नहीं होगी, और इसमें आपको सूट्स भी, जो धुआं है उसका वो भी आपको वाजे नज़र आएगा कि इसमें जो अनबर्न फ्यूल जो है, ये फ्यूल पूरी तरह से कंबशन उसकी नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ये आपको ये प्रॉब्लम्स सामने आएंगी, और अ क्वांटिटी ऑफ दिस सूट विल पास हार्मली आउट विद द एग्जॉस्ट बट सम विल कंटेमिनेट द ऑयल फिल्म ऑन द पिस्टन एंड सिलेंडर एंड ड्रेन डाउन इनटू क्रैंकेस। कुछ तो जो धुएं हैं उसके हिसाब से वहाँ से वो हार्मफुल गैसेस निकल जाएंगी, लेकिन कुछ जो है वो ऑयल फिल्म के साथ जो है कंटेमिनेट हो जाएगी, और आपके पिस्टन और सिलेंडर को भी इफेक्ट करेंगी, और क्रैंक केस में वो ऑयल जब जाएगा तो वो उसी के साथ शामिल होके चली जाएंगी। इफ देयर इज एनी वाटर प्रेजेंट दिस सॉलिड विल इमल्सिफाई टू फॉर्म स्लज। अगर कहीं पानी भी उसमें आता है, आपके जो ऑयल्स का जो पूरा सिस्टम है उसमें
तो उसके साथ मिल के एक स्लच कीचड़ नुमा मिक्सचर जनरेट कर देगा, और वो उसकी वजह से हो सकता है कि वो आपके जितने भी ऑयल वेज हैं जहाँ से ऑयल पास हो रहे हैं और वो उसको ब्लॉक कर दे. So for that, filters are incorporated into oil circulation system to remove solid contaminants together with any atmospheric dust which bypass their filters. तो इसीलिए हम ऑयल के जो सर्कुलेशन सिस्टम में उसमें जगह जगह फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है ना. और उसका मकसद ये होता है कि जब ऑयल इनसे पास हो तो ये फिल्टर्स जो है वो उनको पार्टिकल्स को या उन चीज़ों को स्लजिस को ब्लॉक कर दे, और आपका ऑयल जो है वो उससे फिल्टर होके वापस अपनी सर्कुलेशन सिस्टम में मूव हो. इसीलिए हम कहते हैं कि एक फ़िल्टर का एक दौरानिया होता है, और इस फ़िल्टर को हमने एक ख़ास टाइम के बाद चेंज करना होता है और फ्रेश फ़िल्टर लगाना होता है. अगर हम ये नहीं करते तो वो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है. वन ऑफ द लिक्विड कंटेनमेंट is water, the presence of which is brought about by the fact when fuel is burned, it produces approximately its own weight in water. When the engine is warm, this water converted into steam which passes harmlessly out of the exhaust, or however the cold running or startup condition, this water is not converted and drained into some. Having dissolved some of combustion gases, it will be acidic in nature. वही बातें हैं कि acidic in nature and they will form sludge. ठीक है ना. सेम चीज़ें फिर इसमें आ रही हैं. Another liquid contaminant is unburned fuel. A poor quality fuel, for example, may contain high boiling point constituent that will not all burn off in the combustion process and will drain into some. तो हो सकता है कि आपके फ्यूल जो है पुअर क्वालिटी फ्यूल है उसमें ऐसे कंटामिनेंट्स हो जो कि हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हों उनके, और वो बर्निंग पॉइंट पे भी ना बर्न हो सके, तो ऐसे जो है वो कंबशन प्रोसेस में नीचे ड्रेन हो जाते हैं सम्प में. ठीक है ना. तो वो आपके ऑयल के साथ मिक्स होते हैं. द पार्टिकल ऑफ एडिंग kerosene to fuel to facilitate easy starting in very cold weather will eventually cause several dilution of lubricant. तो बाज़ वक्त जो है वो सर्दियों में फ्यूल के साथ थोड़ा केरोसिन ऑयल भी ऐड किया जाता है ताकि उसकी बर्निंग क्विकली हो, मतलब आपका सिस्टम जो है वो इजीली स्टार्ट अप हो. लेकिन इस केस में जो है वो आप जब उसमें केरोसिन डालते हैं और वो बर्निंग में जो अनबर्न फ्यूल अगर वो ऑयल में शामिल हो जाते हैं तो वो आपके ऑयल को डाइल्यूट भी कर सकता है, मीन्स को थोड़ा उसकी विस्कोसिटी इफेक्ट कर सकता है. एक्सेसिव यूज ऑफ ओवर रिच मिक्सचर इन कोल्ड वेदर विल mean that the all fuel is not burned because of lack of oxygen, and again some remain to drain into the some. वो वही चीज़ें पुअर वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल, अगर वो उसकी वेपराइजेशन नहीं हो रही, ठीक है ना, तो वो भी जो है वो ऑयल डाइल्यूशन क्रिएट करेगी. ज़ाहिर है जब वो वेपोराइज नहीं होगा तो उसकी बर्निंग नहीं होगी. बर्निंग अगर वो ठीक तरीके से वेपोराइज नहीं हो रहा तो मीन्स वो ज़ाहिर है लिक्विड फॉर्म में उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ऑयल के साथ जाके मिक्स होंगे और उसकी डाइल्यूशन होगी. जनरली दिस फ्यूल विल बी ड्रिवन ऑफ व्हेन द इंजन बिकम वार्म एंड इज रनिंग at optimum condition. However, severe dilution of oil by fuel could have serious result as viscosity of oil will be reduced to unacceptable level. फिर आपको जो है वो ऑयल जो है वो जल्दी चेंज कराना पड़ेगा. ऑक्सीडेशन वही चीज़ है, इसमें भी वही है कि इंजन लुब्रिकेशन और में जो मसले आते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से भी जो है वो इंजन लुब्रिकेंट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं. द कंडीशन ऑफ ऑपरेशन इन इंजन आर कंड्यूसिव टू ऑयल ऑक्सीडेशन एंड दिस इज अनदर प्रॉब्लम टू बी ओवरकम बाय लुब्रिकेंट्स. इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड भी करते हैं लुब्रिकेंट्स में. In the crank case, the oil is sprayed from various components in the form of oil mist, which is in contact with large quantity of air at a fairly high temperature, and they will react and oxidation process, and some acidic materials will be formed. So oxidation produces a complex carbonaceous product and acidic material, and these combined with fuel contaminant will form stable sludges. In combustion chamber where the temperature are very much higher, then oil is scraped up the cylinder wall by the piston ascending a very high speed and is again present in the form of an oil mist. A form of carbon deposit is produced by the combination of heat, decomposition, and oxidation. Some of these deposits will remain, but some pass into the sun. The effect of oxidation add to the problem of oil contamination by the product of combustion, resulting in the formation of resin-like material
on the pistons and hot metal parts as a liquor and acid material which will attack bearing metals such as copper, lead. तो वही पुरानी बातें हैं कि वही जो है वो ऑयल में एयर और वाटर की वजह से जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और सर्टन एसिडिक मटेरियल्स बनते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्लजेस होते हैं, या कार्बन जो है वो आपके सिस्टम के सिलेंडर्स के साथ या इस तरह की जो मटेरियल्स डिकम्पोजिशनिंग होती है ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बन डिपॉजिट होता है और वो जो है वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। और यही फिर जो है वो फर्दर जो है आपकी जो अदर पार्ट्स हैं बेरिंग्स के जो कॉपर लीड्स पे हैं उनके साथ अटैक करता है ये एसिडिक मटेरियल्स और अदर जो स्लजेस हैं, और वो आपके सिस्टम को कोरोड करता है या ख़राब करता है। दिस प्रॉब्लम ऑफ इंजन लुब्रिकेशन कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग हाईली रिफाइंड ऑयल। अच्छा, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंजन हैं कि फ्रिक्शनल वेयर्स आ सकती हैं, केमिकल वेयर्स आ सकती हैं, कंबशन की वजह से भी इफेक्ट्स आपको कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, ऑक्सीडेशन हो सकती हैं उसमें। तो इन इन सब प्रॉब्लम का हल यही है कि हम उसमें एडिटिव्स इंक्लूड करते हैं। ये यही कह रहा है कि दिस प्रॉब्लम ऑफ इंजन लुब्रिकेशन कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग हाई रिफाइंड ऑयल। तो अगर इंजन की लुब्रिकेशन में आपको ये मसले फिर भी आ रहे हैं तो आपको अपने इंजन में एडिटिव्स इंक्लूड करने हैं या आपने हाईली रिफाइंड ऑयल यूज़ करना है। हाईली रिफाइंड ऑयल के साथ साथ आपने एडिटिव यूज़ करने हैं, और वो एडिटिव हमने बाकायदा डिस्कस किए कि कौन कौन से एडिटिव्स हैं और उनका क्या काम है। द रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन इज फर्दर एनहेंस बाय एंटीऑक्सीडेंट्स। हम अगर ऑक्सीडेशन हो रही है आपके सिस्टम में इंजन में ड्यू टू lubricating oil, so you will use antioxidant as additive in your oils. The addition of corrosion inhibitor counter acidic material produced by combustion at low engine temperature। तो अगर आपके ऑयल की लुब्रिकेशन ऑयल की वजह से उसमें करोजन फिर भी हो रही है और एसिडिक मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं एट लो टेम्परेचर, तो भी आपने फिर एडिटिव यूज़ करने हैं। दैट विल बी एंटी करोजन एडिटिव। डिटर्जेंट्स आप यूज़ करते हैं तो ये वही चीज़ें हैं, ये आप लोग एक नज़र इसको आप पढ़ लें इस पैराग्राफ को। ये वही है कि डिटर्जेंट जो है अगर आपकी सर्फेसिस पे वो सारे स्लजेस जमा हो रहे हैं तो आपके इंजन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, इसलिए यू विल यूज़ एज फुली डिटर्जेंट टाइप लुब्रिकेंट। या आप इस तरह का लुब्रिकेंट सेलेक्ट करो कि वो फुली डिटर्जेंट टाइप हो। ऑल अगर जब इनकी सब की समरी ये है कि जब भी आप ऑयल ख़रीदो तो आप देखो कि वो ऑयल जो है बजाय कि आप सेपरेट जो है वो एडिटिव्स लो और उसमें ऐड करो, यू मस्ट सेलेक्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल हैविंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज। आप उसकी बैक साइड पे देखो जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें सारी इसकी ग्रेड्स नंबर वो सारी चीज़ें डिटेल दी होती हैं। सो अक्सर हम करते ही हैं कि पैसों की वजह से हम लो क्वालिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल को प्रेफर करते हैं कि चलो ये बस कुछ अरसे तक तो चल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कुछ ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आपने देखे होंगे काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, तो महंगे इसलिए होते हैं कि उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं, और थोड़े से पैसे के लिए तो हम वक्त पे अपना काम चला लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि अंदर हमारे जो सिस्टम है या इंजन है या जो भी प्लांट है उसमें कितनी खराबियां ये क्रिएट कर सकता है। सो अगेन वी हैव टू बी थोड़ा मतलब थोड़े से फ़ायदे के लिए जो है अपना बड़ा नुकसान ना करें। बेहतर ये है कि हम प्रॉपर ग्रेडेड ऑयल खरीदें। The AC viscosity system, Society of Automotive Engineering viscosity system. This classification was devised by SAE by dividing the viscosity span into four and giving each of division number. जो विस्कोसिटी है उसको चार स्पैन में कन्वर्ट किया और उसको नाम दिया हुआ है SAE 20, SAE 30, SAE 40 और 50। सही है, जो थिनेस है वो SAE 20 है। ठीक है, एंड दैट कवर रेंज, इसकी विस्कोसिटी क्या है 5.7 से 9.7 CST, जो कि विस्कोसिटी का यूनिट है। सेंटी स्ट्रोक है कि क्या था इनिशियली, स्पेसिफाइड एट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट विच वाज कंसिडर्ड टू बी टेम्परेचर टिपिकल फॉर अ हाइट है। तो एक हॉट इंजन के लिए जो टेम्परेचर है उन्होंने जो थिनेस ग्रेड जो रखा है वो ऑयल का वो SAE 20 है।
The SEE originally specified temperature in degree centigrade because they were conventional. Today temperature quoted in डिग्री सेंटीग्रेड, पहले इस डिग्री फ़ारेनहाइट में था, आजकल डिग्री सेंटीग्रेड में भी कोटेड होता है ऑयल पे. Later the SEE series were extended to include much thinner oil because of the growing demand for easier winter season. अच्छा, विंटर सीजन के लिए ज़ाहिर है हमें थिनर चाहिए होता है, तो SEE ने फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन की, और क्या की उन्होंने SEE 5, SAE 10, SAE 20 W विंटर मनी के लिए वो ऑयल के ग्रेड्स जो है वो स्पेसिफाई किए. तो अगर किसी को विंटर्स में ये वाले ग्रेड चाहिए तो वो इन SAE 5W 10W और 20W को और लुब्रिकेटिंग ऑयल पे देख के वो सिलेक्ट कर सकता है. लेटर स्टिल ग्रेड ऑफ 0 विंटर 15W एंड सो फर्दर आगे ज़ाहिर इम्प्रूवमेंट आती गई, तो ये वाले ग्रेड्स भी जो है वो इंक्लूड किए गए. ठीक है. मल्टी ग्रेड, अच्छा कुछ स्लाइड्स रहती हैं, इसको देखते हैं. मल्टी ग्रेड, अच्छा मल्टी ग्रेड्स क्या है? ऑल ऑयल बिकम थिनर व्हेन हीटेड एंड थिकर व्हेन कूल्ड. ये तो आपको पता है कि जितने भी ऑयल्स हैं वो हीटेड की वजह से थिन होते हैं और थिकर होते हैं कूल होने पे. बट सम आर लेस सेंसिटिव देन अदर टू दिस विस्कोसिटी टेम्परेचर इफेक्ट. द डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी इज नोन एज विस्कोसिटी इंडेक्स. लेकिन कुछ जो है वो ज़्यादा लेस सेंसिटिव होते हैं rather than the other due to temperature effects. तो वही विस्कोसिटी इंडेक्स को इसने एक और दफ़ा डिफाइन किया है. द डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी इज नोन एज विस्कोसिटी इंडेक्स. पहले हमने पढ़ी थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर इज विस्कोसिटी इंडेक्स. सो ये भी एक कितना वो सेंसिटिव है विद द टेम्परेचर, दैट डिफाइन विस्कोसिटी इंडेक्स. ऑयल हैविंग high viscosity index, if it is display a relatively small change of viscosity for a given change of temperature. Clear? In 1950s, development in additive technology led to the production of engine oil with usually high VI known as multigrade oil. अच्छा, 1950 के बाद जो है वो एडिटिव टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हुई, और जो है हमारे पास इंजन ऑयल बनने लगे जिसकी हाई विस्कोसिटी इंडेक्स हैं, जिसे हम मल्टी ग्रेडेड ऑयल कहते हैं. क्यों कहते हैं वो नीचे उसने वजह बताई हुई है. और मल्टी ग्रेड ऑयल oil's high resistance to temperature change is sufficient. It combined with virtue of thin grade at low starting temperature and thick at running temperature. अच्छा, ये मल्टी ग्रेड ऑयल ऐसे हैं कि ये जो है वो हाई रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर हैं, और ये इस तरह इन्होंने बनाए हैं कि जो स्टार्टिंग पे टेम्परेचर ज़ाहिर है कम होता है तो उस वक्त ये इसका बिहेवियर एक थिन ग्रेड की तरह होता है. लेकिन जब एक इंजन जो है वो फिर रन होता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, सो इट इट बिहेव्स लाइक अ थिक हायर ग्रेड, या उसकी विस्कोसिटी उस वक्त जो है वो बढ़ जाती है. मतलब वो चेंज नहीं होती. इनिशियली ये लो होता है इसकी विस्कोसिटी, या थिन ग्रेड बिहेव करता है, और हाई टेम्परेचर पे जो है वो थिक हो जाता है. मतलब उसकी विद द टेम्परेचर उसकी विस्कोसिटी कम नहीं होती. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मल्टी ग्रेड ऑयल. एग्जाम्पल क्या है? एन SAE 20W -40 मीन्स ये 20 भी है 40 भी है, मल्टी ग्रेड है और विंटर के लिए है. ठीक है ना. इस थिन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एज 20W ऑयल बट थिक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एज एन SAE 40 ऑयल. तो ये जो SAE 20-40 का मतलब ये है कि ये मल्टी ग्रेड ऑयल है. इसमें 20 ग्रेड का भी और 40 का भी है, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20W की तरह एक्ट करता है और थिन फिल्म क्रिएट करता है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये थिक लेयर जो है या थिक फिल्म क्रिएट करता है इन एज SA 40. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मल्टी ग्रेड ऑयल. Thus, the multigrade combines full lubrication protection at working temperature, satisfactory, easy starting on frosty morning. तो ये आपको इजीली जब आप मॉर्निंग में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, उसमें इस तरह के ऑयल्स जो हैं वो, या ऐसे जगहों पे आपके सिस्टम में अगर आप उसको रन करते हैं तो वो स्मूथली रन होगा. API सर्विस क्लासिफिकेशन. अच्छा, API मींस अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, और ये क्या इन्होंने भी क्लासिफिकेशन की हुई है. वो क्लासिफिकेशन क्या है कि इन द API सिस्टम द लीस्ट डिमांडिंग क्लासिफिकेशन फॉर पेट्रोल इंजन
was originally designated SA। इन्होंने SA से इसको, जो लीस्ट डिमांडिंग क्लासिफिकेशन है पेट्रोल इंजन की, उनको SA से डिजिग्नेट किया है। मोस्ट डिमांडिंग इज द प्रेजेंट SG। जो प्रेजेंट ज़्यादा डिमांड है जो लुब्रिकेट इंजन लुब्रिकेटेंट की, उनको इन्होंने SG से डेजिग्नेट किया हुआ है। Constant development of both engine and oil means that from time to time the highest rating are superseded by even higher rating। कि वक्त के साथ जो है वो हायर रेटिंग जो है वो बढ़े या वो यूज होता जाए। The API also classified diesel engine oil by their severity of service। Here the categories are have the prefix C which stand for commercial petrol engines। अच्छा, आम जो इंजन के लिए एस ए जो है लीस्ट डिमांडेड के लिए, SG जो है वो मोस्ट डिमांडेड है, ठीक है ना। और डीजल के लिए ये सी का लफ्ज यूज करते हैं, किस तरह वो आगे स्लाइड्स में है, लेकिन ये इन्होंने लफ्ज दिए हुए हैं। जैसे सी है तो सी जो है वो डीजल सिस्टम के लिए है, ऐसे इंजन जो डीजल पे चलते हैं, क्योंकि उनकी जाहिर है डीजल इंजन का आपने देखा होगा कि उसकी सर्विस काफ़ी सीवियर होती है। उस पर हम हाई लोडिंग चीज़ें जो हैं वो ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, जितने भी ये सारे डीजल, क्योंकि उनका काम हैवी लोडिंग का हैवी वर्क है। ऐसे सर्विस टिपिकल ऑफ इंजन ऑपरेटेड अंडर माइल्ड कंडीशन। दिस क्लासिफिकेशन हैज़ नो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। जो ऐसे था जो लीस्ट डिमांडिंग था, ठीक है ना, वो जो है वो टिपिकली उन इंजन के लिए है जो कि एक आम नॉर्मल कंडीशंस में यूज होते हैं, और उनकी द क्लासिफिकेशन हैज़ नो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेट। और इसके लिए कोई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, हम कहते हैं बस हमें परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, वो अपना जस्ट वो लुब्रिकेशन और उसका काम करे, ठीक है ना। एस बी सर्विस टिपिकल ऑफ इंजन ऑपरेटिंग इन कंडीशन दैट ओनली मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ टाइप अफोर्डेबल बाय एडिटिव इज डिजायर्ड। और एस बी वो लुब्रिकेटिंग इंजन लुब्रिकेंट्स हैं जिसमें जो है वो एडिटिव्स इंक्लूड होती हैं ताकि वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे सके ऐसी कंडीशंस पे जहाँ पे ये एंटी ऑक्सीडेशन या करोजन और इस तरह के मसले हों। Oil designed for this service have been used in since 1930। They provide only anti-scuff capability and resistance to oil oxidation and bearing corrosion। So 1930 के बाद जो है वो SB सर्विस इन्होंने शुरू की और इस क्वालिटी के लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बनाए गए जो कि रेजिस्टेंस टू ऑयल ऑक्सीडेशन और बेरिंग करोजन हों, ठीक है। एंड द लास्ट स्लाइड वाज इज SC, फिर SC बने, SD बने और SE। अब SC SD क्या है? SC सर्विस टिपिकल ऑफ पेट्रोल इंजन जो कि 1964 से 1967 तक कार और ट्रक के लिए है। इन ऑयल की खुसूसियत क्या है? ऑयल डिज़ाइन फॉर दिस सर्विस प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ हाई एंड लो टेम्परेचर डिपॉजिट्स वेयर रस्ट एंड करोजन। तो ये SC, अगर आपसे कोई पूछे कि SC का क्या API में क्या मतलब है, तो आप बता सकते हैं कि ये वो ऑयल हैं, ये ऐसे ऑयल हैं जो डिज़ाइन किए गए हों हाई कंट्रोल ऑफ हाई एंड लो टेम्परेचर डिपॉजिट वेयर रस्ट एंड करोजन। फिर SD हैं जो 1967 से 1970 तक पेट्रोल इंजन कार और ट्रक के लिए हैं, बट इट में अप्लाई टू लेटर मॉडल ऑयल डिज़ाइन फॉर दिस सर्विस। ये अहम है, ऑयल डिज़ाइन फॉर दिस सर्विस प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन देन SC against high and lower level deposit where rust and corrosion and may be used where SC is recommended। ये उससे SC से ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। और SC सर्विस टिपिकल ऑफ पेट्रोल इंजन इन कार एंड सम ट्रक 1972 से 1979। ऑयल डिज़ाइन फॉर दिस सर्विस प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन अगेन ऑक्सीडेशन। लेटर ऑन बाद में, चूँकि आजकल 2020 का ज़माना है, आप अगर नेट पे सर्च करें तो आप अगर फर्दर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च करें तो इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स आई होंगी, ठीक है ना। तो उनको भी अगर हम थोड़ा रीड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या और फर्दर क्वालिटी हैं। हाँ, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। काफ़ी ऐसा लेक्चर था कि मैंने खुद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं खुद भी सीखी, और दोबारा मुझे एक टाइम बाद, चूँकि 2011 में हमने ये पढ़ा था, 9 साल बाद फिर जो है इसको देख रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें रिकॉल भी और मेरे खुद जो है नॉलेज में इजाफा हुआ। सो अगर आपको आप इस लेक्चर को देखें, अगर आपका फिर भी कहीं पे आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप जो है गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन टाइप करके
पूछ सकते हैं, या अगर आपको सिवियर कोई मसला इसमें आता है, समझ नहीं आती, सो यू कैन अरेंज यू कैन अरेंज द क्लास एनी टाइम। मोस्ट वेलकम, आप किसी वक्त भी क्लास अरेंज करें, एंड आई एम अवेलेबल टू आंसर यू रिगार्डिंग योर एनी क्वेरीज। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, इसके साथ आई थिंक कोर्स ख़त्म हो गया। बाकी लेक्चर नंबर जो 15 है जीशान साहब ने अपलोड किया है, तो हमने मशवरा किया, तो लेक्चर नंबर 15 आप जो अगर अपनी इंफॉर्मेशन के लिए देखना चाहते हैं तो वो देख लें, अदरवाइज लेक्चर नंबर 15 जो है वो इंक्लूड नहीं है आपके एग्जामिनेशन में। सो अगर कोई इंटरेस्ट है तो एक नज़र उसको देख लें, अगर नहीं है तो डोंट वरी, दैट इज़ जस्ट अपलोडेड फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्लियर? अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ, 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ ये आखिरी लेक्चर है मेरा। ठीक है ना, इसके बाद जो है वो शायद आप लोगों के साथ कहीं पे इस तरह टीचर और उसका वास्ता ना पड़े पढ़ाने का। ठीक है ना, तो आप लोगों ने माशाल्लाह 4 साल गुजारे, 4 साल में मैं आप लोग के साथ ही था इधर डिपार्टमेंट में। आप लोगों ने माशाल्लाह 4 साल गुजारे अच्छे तरीके से। अल्लाह आप लोगों को जो है वो कामयाबियाँ अता फरमाए। बस मेहनत करें। मैं डिपार्टमेंट में जब तक ज़िंदा हूँ, डिपार्टमेंट में हूँ, अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी मसला हो, गाइडेंस हो, यू आर मोस्ट वेलकम। और आई एम सेइंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आप देखें कि ये जो कमिंग वीक है यही एक आखिरी वीक है, और इसमें थोड़ा अपना लुब्रिकेंट भी जो है वो अपने अपने से भी लुब्रिकेंट निकाल लें। जो मेहनत करता है तो उसका आपको रिवार्ड ज़रूर मिलता है। तो ये एक हफ्ता है, इसमें आप मेहनत करें। ओपन बुक एग्ज़ाम है, आई थिंक इतना कोई आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर है ईद भी है, ईद भी आपने गुजारनी है, लेकिन चूंकि अब सिस्टम को आपके लिए रन कर रहे हैं, आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है आपको फारिग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। सो आप ये एक वीक को सीरियस लें और अपनी स्टडी को ठीक तरीके से करें। ठीक है ना, और आई होप इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। रेस्ट अगर आपको फिर भी कोई, मैं बता देता हूँ, कोई भी इशू हो, यू कैन contact me, you can ask me, and even you can arrange the class at any time. I have no issue. ठीक है, तो अगेन आई एम थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने इस पेंडेमिक में क्लासेस ली, मुझे सुना, बर्दाश्त किया, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।